So how did you make this decision that French will be possible for you? Talking about A1 program, was it helpful for you? How was the flow of the structurization and how did you progress it? And आपका A1 पे क्या था study methodology? 6 घंटे 7 घंटे दिन में हो जाते थे। If you're on work as well, if you're outdoors as well, आपको proactivity बहुत दिखानी पड़ती है। चलो A1 तो मैंने 1 महीने में कर लिया था कंप्लीट। A2 को थोड़ा लग गया टाइम क्योंकि Welcome everyone. Welcome Diksha. How are you today? आई एम गुड व्योम, हाउ आर यू? I'm doing good. Thank you, Diksha. I'm bringing you on this meet so that we are able to share your experience with other students, those who are learning French, those who are at basic levels. Because I mainly, you are one of my students, and I really see, like, actually, you have a lot of strong points. Main strong point is speaking, like the pronunciation and the speaking that you built in just 3 months up until now. So that is why I was like, let's bring you on and let's share your experience to other students as well, so that they are able to get motivation and keep on learning French through all these experiences. So tell us that, what's your overall profile? Are you currently working or on student permit? And just give your overall information. Hello everyone, my name is Diksha. So I came in Canada in December 2019 and I got my work permit in September 2022. For the French, I got to know around February this year. So my cousin was studying from India and he told me that if you'll do the French, you will get points for your PR. And then I got to know more about that and I thought that okay, let's give it a try. So I started learning with him the French. Okay. Sounds good. So so you said you got work permit in 2023 in September? 2022, sorry, yeah. 2022. Okay. So in 2022, because like right now we are in the end of 2024, right? So you just started learning French recently. But what Yes. happened? What happened? Itna time? Why did you not know? Or did you know कि French would be helpful, or was it just recently that you came to know about French? पहले तो मतलब कुछ ऐसा पता नहीं था कि हाँ भी ये ऐसे फ्रेंच का भी होता है कि हाँ भी 50 पॉइंट्स ऐसे मिलते हैं, कुछ ऐसा था क्योंकि मुझे जो पीआर वाला काम था वो मुझे थोड़ा लेट मिला। तो जब मैं ब्रिटिश कोलंबिया में हूँ तो मुझे वो उस टाइम पे सितंबर-अक्टूबर मंथ्स भी ऐसे होते हैं कि काम बहुत स्लो हो जाता है, तो वो मैं बहुत ट्राई कर रही थी कि काम मिल जाए पीआर के लिए, बट थोड़ा लेट मिला, पर चलो कोई नहीं। बट ये फ्रेंच का मुझे फ़रवरी मार्च में ही पता लगा। तो मेरे ब्रदर ने ही मुझे कहा था कि तू कर ले। सो इंडिया से वो कोचिंग ले रहे थे, बट वो इंडिया से नहीं उन्हें इतना ठीक लगा। तो वो मतलब ऐसे वो गूगल पे बहुत सर्च करते रहते हैं, तो उन्हें अब फ्रेंचिफाई विद व्योम का पता लगा। तो उन्होंने कहा कि ये एक प्लेटफ़ॉर्म है, तू ये ट्राई करके देख। So then I got to know more about you. Then I texted you and started my French learning with you. Sounds good. And so that was, I believe that was, you came to know about French through your cousin, and that's how you started into it. So that's a very good thing that, your family members are motivating you to learn French, because usually sometimes what happens is some people, they want to learn French, but either friends or family members or anyone, they can be like, oh, French is not possible and this and that. But it's all about the mindset. So how did you make this decision that, French will be possible for you? Was it like before, was it like ki it is not going to be possible? Did you ever thought of this ki it's going to be difficult or not possible, something like that? बहुत बहुत टाइम ऐसा होता था कि कई बारी प्रोनाउंसिएशन जब लाइक मेरा कज़न मुझे पढ़ा रहा होता था, तो वो डिफरेंट सिटी में था, मैं डिफरेंट सिटी में थी। ब्रिटिश कोलंबिया में ही थे, पर जैसे मेरा काम के आवर्स डिफरेंट होंगे, तो उसके काम के आवर्स, तो मतलब हम शाम को टाइम निकाल लेते थे फ्रेंच पढ़ने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब वही प्रोनाउंसिएशन में बहुत डिफ़िकल्टी आती थी, कैसे एबीसी अल्फ़ाबेट्स कैसे प्रोनाउंस करने हैं। फिर बाद में चलो वो आया, वो थोड़ा लर्न करने में आया। फिर बाद में जैसे वर्ब्स आए, आर एंडिंग वर्ब्स सारे, वो तो उसकी कॉन्जुगेशंस, स्पेशली कॉन्जुगेशन में मुझे बहुत डिफ़िकल्टी होती थी। तो मैंने मतलब मैं मीनिंग याद कर लेती थी, बट कॉन्जुगेशंस नहीं याद होती थी। तो तब वो मुझे था कि हाँ भई, अगर कॉन्जुगेशन ही नहीं याद करेंगे तो फिर सेंटेंसेस नहीं बिल्ड होंगे। तो ऐसे धीरे-धीरे किया। सो समझने लगी मैं कि मैं स्ट्रेस नहीं लिया कि हाँ भी नहीं, न्यू लैंग्वेज है, तो धीरे-धीरे ही समझ आएगा कि मतलब अगर हम करेंगे ट्राई तो। या डेफिनेटली, क्योंकि देखो अगर स्टार्टिंग में, इफ यू अगर स्टार्टिंग में ही इतना सिलेबस देख के, जो सिलेबस तो ज्यादा है, ऐसा नहीं है कि इट्स जस्ट लाइक अ पीस ऑफ लाइक अ पीस ऑफ केक। सिलेबस है बहुत कवर करने को, बट अगर स्टार्टिंग में ही हम वो देख के डिमोटिवेट हो जाएंगे, देन डेफिनेटली फिर लाइक क्या ही फायदा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि टेक इट स्लो एंड टेक इट पेशेंटली,
एंड वो ओवर द टाइम ही फिर इम्प्रूवमेंट्स होती है. यू आर करेक्ट ऑन दिस. So talking about your beginning, Diksha, with Frenchify, I know you started with A1 program in the end of September, so around 24th September, and you completed A1 level from 24th September to 20 October. So it took about like 25 days. I know you did some, you studied a little bit before as well. Talking about A1 program, the structure of A1 program, grammar, vocabulary, reading, listening, speaking, writing. How was that helpful? Like, was it helpful for you? How was the flow of the structurization, and how did you progress it? Yeah, I will definitely say it was helpful. No doubt, if somebody is new to language and if they are in the program of Frenchify with Vio, no doubt, like there are many videos in the A1 level. I think that's really good because in sometimes if we search on YouTube as well, it's like 3 hours videos they will teach A1 level. I have seen many of the videos like that, so I think that's not a good approach. But in Frenchify with Viom, there are like separate videos on every topic. I think that's really helpful if somebody is new, and it will really helpful for them to learn the language. And doubt sessions का कैसे था? Were you able to, because like it's like online course plus doubt sessions as well. So वो आपके लिए सही रहा? Were you able to get your answers resolved at doubt sessions as well? हाँ जी, डाउट सेशन का भी मैं कहूँगी अब जैसे आई थिंक आप ओंटारियो में हो, राइट? तो ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया लाइक टाइम का डिफरेंस बहुत है। पर जैसे शाम को लेक्चर्स मैं लगा लेती थी मंडे, वेडनेसडे, बट सैटरडे ऐसा होता था कि नहीं लगते थे, कई बार काम क्या होता था क्योंकि अर्ली मॉर्निंग था, तो हमारे कई बार 4 बजे होते थे ब्रिटिश कोलंबिया में या 5 बजे, तो कई बार काम होता था ऐसे, तो वो ऐसा हो जाता। पर हाँ, जैसे वीडियोज़ रिकॉर्ड होती थी, तो आई थिंक वो मैं देख लेती थी। इट वाज़ रियली हेल्पफुल। उसमें मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो जाते थे जो मुझे थे। एंड आपका A1 पे क्या था स्टडी मेथोडोलॉजी? बिकॉज अब देखो, आपने रिसेंटली A1 कंप्लीट किया हुआ है, एंड स्टूडेंट्स के व्हेन दे आर लर्निंग फ्रेंच, और किसी के भी जब वो बेसिक लेवल से स्टार्ट करें, उनके दिमाग में ये होता है कि व्हाट शुड बी माय स्टडी रूटीन, कि कहाँ पे पहले ध्यान दूँ, कहाँ पे कम ध्यान दूँ, कहाँ पे मैं टाइम बचाऊँ ज़्यादा से ज़्यादा, और वो टाइम यूज़ करके मैं किधर को डालूँ. सो व्हाट यूज्ड टू बी नाउ, इवन दो इट्स लेड आउट इन द कोर्स, बट आई वुड लाइक टू हियर इट फ्रॉम योर एक्सपीरियंस एज वेल, कि वेयर यू सॉ द मोस्ट प्रोग्रेशन, कि कहाँ पे ज़्यादा टाइम डाल के you used to get the best out of it? मेरे अकॉर्डिंग ऐसा है कि मतलब स्केड्यूल सबका डिफरेंट होता है, राइट? काम का तो कभी कभार नाइट शिफ्ट्स होती हैं कईयों की, या अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट्स होती हैं। सो अगर मेरे हिसाब से अगर किसी की नाइट शिफ्ट है, अगर कोई रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक काम कर रहा है, क्योंकि मेरी ऐसी शिफ्ट्स होती थी जब मैं मतलब फ्रेंचीफाई विद व्योम वाले प्रोग्राम में नहीं थी, जब मैं अपने कज़न के साथ पढ़ रही थी, तो मेरी अप्रोच ऐसी थी कि चलो आके 7 या 8 बजे आके खाना खा के मतलब सो लिया बंदे ने, और फिर बाद में सुबह आई मीन दोपहर को 2-3 बजे उठ गए, तो वही 8 आवर्स 7 आवर्स की स्लीप इनफ होती थी। तो वही उसमें ही अगर है कि हाँ भी नेक्स्ट डे अगर वही रात को अगेन आपकी शिफ्ट है, तो वही 1 घंटे 1.5 घंटे में अपना खाना-पीना कर लो, सारा रेडी कर लो। उसके बाद जो टाइम है वो मेरे लिए सूटेबल होता था कि मैं लाइक जैसे 5 बजे से लेके 8 बजे तक वो उसमें पढ़ लिया। तो अगर मेरे सामने अगर आप फ्रेंचीफाई विद व्यो में हो, तो और अगर आपका लाइक स्केड्यूल भी थोड़ा नहीं मीट करता, तो मेरे हिसाब से आप जैसे काम पे जाते वक़्त तब वीडियोज़ देख ली। चलो नोट्स उस वक़्त नहीं बने होते, बट एट लीस्ट जो प्रोनाउंसिएशंस वगैरह हैं, जो वोकैब्युलरी एंड के लेक्चर्स में होती थी, वो सुन ली। सो उससे आपको और नॉलेज मिलेगी और पता लगेंगी मीनिंग्स, और वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। हाँ, सो क्योंकि बिकॉज इट्स इन द फॉर्मेट ऑफ ऑनलाइन कोर्स, तो उसमें क्या होता है, यू हाँ हैव जी, फ्लेक्सिबिलिटी टू डू अकॉर्डिंग टू योर ओन टाइमिंग्स, कि व्हेन यू आर एट वर्क यू कैन डू हाँ जी, इन द मिडल ऑफ योर कम्यूट एज वेल. अगर आप घर पे लेट आए, यू कैन डू इट देन एज वेल. डाउट हाँ सेशन में जी। डाउट रिजॉल्व हो ही रहे हैं, सो दैट्स नॉट द इशू. ऑन एन एवरेज यू यूज्ड टू स्टडी अबाउट 3 आवर्स रेगुलरली फॉर A1? हाँ जी, 3 आवर्स या सो उस टाइम पे ऐसे था कि मैं काम मैंने चेंज किया था, तो था मेरे पास टाइम, तो सुबह उठ के पढ़ लिया 2-3 आवर्स, फिर बाद में जैसे ब्रेक ले ली, तो फिर बाद में पढ़ लिया 3-4 आवर्स। सो ऐसे मतलब 6 घंटे 7 घंटे दिन में हो जाते थे। ग्रेट. तो कभी-कभार नहीं म कई बार लोगों का है ना, कई बार हमें ऐसा होता है नहीं मन करता पढ़ने का, पर हाँ कि नहीं बंदे वीडियोज़ देख ले। या कुछ ना कुछ करते रहो, दैट्स हाँ बेसिकली जी।
if you're on work as well, if you're outdoors as well, आपको proactivity बहुत दिखानी पड़ती है, like you have to put हाँ your जी। input as well, right? वो बहुत जरूरी है, and yeah, that's definitely true because as you mentioned कि you used to sometimes study 4 to 6 hours as well, but कभी कभी उतना मन नहीं करता पढ़ने का, हाँ जी। and the thing is कि same thing used to happen with me. I used to sit for 5 hours, but 5 में से actual में तो 3 साढ़े 3 घंटे ही पढ़े जाते हैं, बाकी जो हाँ टाइम है जी। वो उधर निकल ही जाता है. So no, that is okay as long as regular basis पे we are able to give 3 to 3.5 hours of quality time. That is good enough to progress at a very good pace. So once you were done with A1 and then you moved on to A2, क्या आपको difference लगा in terms of syllabus as well, but not only syllabus में difference? Yeah, like firstly syllabus में क्या आपको difference लगा कि methodology कैसे change हुई A2 पे जाके? चलो A1 तो मैंने 1 महीने में कर लिया था कंप्लीट। A2 को थोड़ा लग गया टाइम क्योंकि थोड़ा वर्क शेड्यूल का भी ऐसे था, शेड्यूल चेंजेस हो जाते थे कभी-कभार ऐसे। तो सिलेबस हाँ जी, बहुत डिफरेंट था। जैसे न्यू टेंसेस आए, एडवर्ब्स आए और भी जैसे प्रोनोमिनल वर्ब्स वगैरह न्यू सिलेबस आया। तो आई थिंक मुझे लगता है कि हाँ, अगर कोई A2 में है उसे घबराना नहीं चाहिए कि देख के कि चलो A1 ईज़ी लगेगा, अगर A2 से थोड़ा-सा लेवल डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि उसमें फिर स्पीकिंग भी आ जाती है, मोनोलॉग्स जो आते हैं हर वीक, तो वो आई थिंक मेबी जो नया-नया A1 से A2 है उसको डिफ़िकल्ट लगे। अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है घबराना नहीं चाहिए, आराम से अगर नहीं होता है तो वीडियोज़ देखो, सेंटेंस बनाने की थोड़ी-थोड़ी कोशिश करो। जैसे अब तो की टेक्नोलॉजी भी बहुत वो है, एडवांस है, चैट जीपीटी है। हम Yeah. चैट जीपीटी से लाइक मैं भी यूज़ करती हूँ चैट जीपीटी को कि हाँ, भई मुझे ये सेंटेंस बना के दे, अगर क्योंकि कई बार मोनोलॉग में जैसे मैंने सेंटेंस कुछ लिखा, पर वो कई बार रॉन्ग हो जाता था, तो मैं चैट जीपीटी को कहती थी कि तू इसको करेक्ट करके बता दे। तो आई थिंक ये अप्रोच यूज़ होनी चाहिए, और अगर कुछ ना समझ लगे और अगर कई कई बार ऐसा होता है, कई लोग शाय हो जाते हैं कि डाउट सेशन में कि हाँ, भई अगर मैं ये पूछूँगा तो ऐसा तो नहीं लगेगा कि ये सिली क्वेश्चन है ऐसे, क्योंकि कई बार हो जाते हैं, मेरे साथ ये हुआ हुआ है कई बारी कि हाँ, भई अगर मैं ये पूछूँगी तो ऐसा सिली तो नहीं लगेगा। बट आई थिंक ये अप्रोच नहीं रखनी चाहिए। हमें सगुड लाइक डाउट सेशन बने ही हैं इसीलिए होते हैं कि हम अपने पूरे क्वेश्चन क्लियरिफाई कर सकें, वो अप्रोच सही रहेगी। एंड A2 की रिसोर्सेज की बात करते हैं बिकॉज A1 मेनली वी आर कवरिंग द होल सिलेबस गिवन इन द कोर्स, सो उसी से काफी A1 की प्रोग्रेशन हो जाती है. वंस वी गो ऑन टू A2, नॉट ओनली कोर्स, जो उसके साथ साथ जो यूट्यूब वीडियो रिकमेंडेशंस हैं, जो वेबसाइट्स हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट और रिकमेंडेशंस हैं, वो भी बहुत जरूरी हैं साथ के साथ उसके साथ कपल करनी, सो दैट वी आर एबल टू improve रीडिंग एंड लिसनिंग द बेस्ट. सो डिड यू सी इनफ डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ योर प्रोग्रेशन, लाइक जब आपने वो रिसोर्सेज यूज की, वर यू सीइंग द डिफरेंस ओवर द टाइम? Definitely, especially the Inner French podcast. When I listened to it for the first time, it was like, oh my god, it's like so difficult. I shared this thing with my cousin as well. I said that, oh, I'm not understanding like what is that tense, and then he said that, oh, it's for like higher level as well. But if you will listen more, then you will learn that, yeah, that I have done this topic. If somebody has completed A2 level, it will be like a little bit easier for her to understand that Inner French podcast. But if I think if somebody is facing problem with the Inner French, they can listen to the CQ Academy or the Easy French as well. And Inner French also, they have a whole series or a playlist of A1 and A2, right? And I think उसमें भी चलो है काफ़ी, उन्होंने हाई लेवल वर्ड्स यूज़ किए, जैसे पेरिस में भी वो है ना, उनके तो काफ़ी कई बार तो Yeah. एक्सेंट्स भी उनके काफ़ी डिफरेंट होते हैं। बट आई थिंक अगर अगर किसी को है रिसोर्स यूज़ करने हैं तो आई थिंक ईज़ी फ्रेंच, इनर फ्रेंच यू यूज़ कर सकते हैं। अगर वो भी उनको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं तो आई थिंक वो स्पीड स्लो करके हम सुन सकते हैं, क्योंकि अब A2 लेवल में ही है। हाँ, अभी अगर किसी को जल्दी नहीं है कि क्योंकि नई लैंग्वेज है, नई लैंग्वेज लर्न करने में टाइम तो लगता ही है। तो मेरे हिसाब से बंदे को वो स्लो करके वीडियो सुन लेनी चाहिए, वो हेल्पफुल रहेगा काफ़ी। और अब जैसे आपने भी वो पॉडकास्ट वो स्टार्ट की है, वो बहुत गुड आइडिया है सभी को वो सुनने के लिए कि हाँ भी पहले सबटाइटल्स के साथ देख लो, फिर बिना सबटाइटल्स के सुनो और देखो कि आपको कितना समझ आता है, और सारी वोकैबुलरी लिखो। आई थिंक वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ये रिसोर्सेज काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे।
Definitely, they're very helpful. Chalo, we were talking about a little bit about monologues and speaking, and let's come to speaking specifically because आपकी speaking बहुत अच्छी है. You really have a good pronunciation. Your phonetics are on point, and whenever you send in those monologue videos as well, they are always commendable because your pronunciation and accent is right on point. How did that happen? Like, were you facing difficulties in the beginning, or like how did your overall speaking accent and pronunciation improved over time? So in the beginning, it was a little bit difficult. So when I was in the A2, thing I texted you right to ask like, oh, are there any speaking sessions? And then you said that yeah, Diksha, like check, we have weekly monologues, then you can participate in that and then speak and send the videos. It was little bit difficult. There were many words I used to Google it and conjugate according to that, and like there were many high level words as well, but I think that was really helpful in the beginning. In some videos they say that you have to pronounce the R word from your throat like that, so I used to do that. And recently when there was a session with the Harleen as well, and she told me that, oh, like you don't need to pronounce it that much hard, like just keep it normal, keep it simple, that if the person in front of you is understanding what you are saying. And now I look back at my videos, the earlier videos, like when you send the results as well, that oh, I got like second position, and I used to tell my cousin, oh, I got second position in monologue, that like, I was really shocked that oh, it was really good or what. But now I see the videos back, I see that oh, some of them words I really pronounced it like very hard, the our pronunciation, but now I have kept it simple. Yeah. And I think the person who is new to these monologues, they should definitely participate in that. It will really help your pronunciation. Like me, now I got to know how this word is pronounced, that word is pronounced. I think I will recommend everyone to participate in that. Not like if they are scared that oh, like it's 2 minutes videos, just try for 1 minute or like 45 seconds, just send it, then you will definitely review his videos, right? So I will recommend that. Yeah, because the goal for monologues is always just to open ourselves up for speaking. क्योंकि कभी कभी पता क्या होता है कि the barrier to learn a language is not actually physical, it's more about mental. It's just like कि the main reason we really need to do a lot of monologues is so that we should stop worrying about grammar and we should just focus on having that extroversion just to speak the language, right? क्योंकि Exactly. लोगों का क्या होता है कि when anyone is learning, and this is something I would recommend to everyone as well, कि if you're trying to speak, just don't worry about grammar mistakes at all. Just like start speaking. Yeah, like create a script, learn it, and speak it in the camera. Like, and keep on doing it for 2-3 months. You yourself will see that you have improved a lot in terms of speaking. वो spontaneity over the time खुद ही आ जाती है. एग्जैक्टली exactly. और अगर हम जैसे हम चलो पहले लिखते हैं फिर बोलते हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन ये भी है कि अगर न्यू वर्ड्स आए तो हम वो न्यू वर्ड्स साइड पे नोट कर लें कि हाँ, ये न्यू वोकेबलरी नोट कर लें, तो उससे हमें और वर्ड एक्सपोजर ऑफ वर्ड्स हो गए कि न्यू वर्ड्स लर्न करने को मिलेंगे, पता लगेगा क्या मीनिंग है इसका और कैसे ये डेली लाइफ में यूज होते हैं वर्ड्स. Yeah. No, that's very useful and very much recommended to keep a track of vocabulary as well. So, yeah, Diksha, for you, A1 and A2, it took you like I think you're almost done with A2. You were just giving the test, and that means A1, A2 it just took you about 3 months. Probably next week you will be starting with B1. So A2, A1, A2, 3 months में हुआ. After that, going on to B1 and then B2 up until the exam specific prep. What goal do you have? Any goal key in XYZ number of months from now? I want to give my exam and clear it. So my approach is to give CLB 5 first. Yeah. So I'm planning to give it in March. Mhm. That's why I was giving test today. That okay, like I thought like okay, it's been 2-3 months that I'm in A2 now. Like I covered syllabus in almost like 1.5 months. Only the reading videos and speaking videos were pending. I saw that and I read that, and now I thought that okay, I'll give the A2 test, then you send the message that oh, it's available now on the website, like you can give anytime. So now I'm planning to give A2 today. So and I think I will take 1 week, and I will move to the B1. I will try to finish it as soon as possible. Then I don't think so it will be this much difficult, but if Actually, somebody
नाउ द पैटर्न हैज चेंज्ड अ लिटिल बिट बिकॉज पहले तो हम B2 पे ही जाके एग्जाम स्पेसिफिक प्रेप हाँ स्टार्ट करते जी, थे, B1 में ही सेक्शन ए हम स्टार्ट कर रहे हैं और सेक्शन B का भी थोड़ा सा ग्लिम्स ले रहे हैं, सो दैट स्टार्टिंग से ही हम CLB 5 तो फोकस रखें B1 लेवल पे ही. सो हाँ जी, दैट इज समथिंग दैट हैज बीन चेंज इन द करिकुलम, और वो बहुत अभी स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहा है, क्योंकि B1 में बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं हु आर जस्ट प्लानिंग टू गिव द एग्जाम बीइंग एट B1, which is ओह! completely okay because CLB 5 पे भी हमारा गोल होना चाहिए, why not. So हाँ जी। yeah, something very useful for B1 level students as well. And अब TEF का आपको now you have progressed this much, and आपका क्या लगता है TF कैनेडा दिमाग में सुनते हो, पहले तो ये क्वेश्चन आता होगा वो पॉसिबल है नहीं है, अब हाँ क्या जी। ये क्वेश्चन आता है ये वर्ड सुन के TEF कैनेडा? अभी तो ऐसा है कि नहीं करना है, कुछ भी हम्म. हो जाए, तो अभी प्लान है कि अभी मार्च में, क्योंकि प्रोग्राम क्या है जून में बंद हो रहा है, और अगर है कि अगर किसी का बाय चांस, वैसे तो कि ऐसा ना हो कि यहाँ भी नहीं हुआ क्लियर, मैं अटेम्प्ट करूँगी कि एक ही बार में हो जाए क्लियर। पर हाँ, अगर नहीं हो जाता तो बाय चांस, तो जैसे आपने बताया था कि 1 मंथ का होता है टाइम, कि उसके बाद हम अटेम्प्ट कर सकते हैं अगेन। सो मुझे है कि मैं मार्च में दूँ, मैं ट्राई करूँगी कि हो जाए, CLB 5 आ जाए। तो हम्म. अगर बाय चांस नहीं भी होता और तैयारी करके उसके लिए 1 मंथ और होगा। चलो, लिसनिंग भी हम एक ही बार होती है, उसमें रिपीट नहीं होता जैसे IELTS और सेल्फ में होता है, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा, बट मैं ट्राई करूँगी कि हो जाए। पर हम्म. हाँ, अगर बाय चांस नहीं होता तो हाँ, भी ऐसा है कि नहीं, अप्रैल का मंथ है तो मई में दे सकते हैं। या. तो ऐसा है अप्रोच, सो आई थिंक वो सही रहेगा। पर हाँ, मैं ट्राई करूँगी कि मेरा मार्च में हो जाए, एक ही बारी में पहले। तो पहले CLB 5 का गोल रहेगा, उसके बाद डेफ़िनेटली CLB 7। Yeah, no, I think the point where you are at right now with about 2 to 3 months of preparation, it's very much possible कि yeah, CLB 5 would be something to look forward to within 2 to 3 months from now, definitely. Okay, हाँ no, जी। that's great, Diksha. And what do you have to say for those जो अभी थोड़े scared हैं French सीखने को? Like there are still a lot of people who are planning to learn French, but अभी वो properly अभी वो mindset नहीं बन पाया, या they are like कि it's not possible, it's very difficult. What do you have to say them? Is it really that difficult or it can happen? मुझे लगता है नहीं, इतना नहीं है डिफ़िकल्ट, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए नहीं कि हाँ, अभी जो वर्क परमिट में है, मैं कहूँगी कि जिनका अभी आया है रिसेंटली, और जैसे वर्क परमिट आने में भी 2-3 मंथ्स लग जाते हैं, तो वो पीरियड ऑफ टाइम भी होता है। तो Hmm. मेरे हिसाब से अगर किसी को करनी है फ्रेंच, तो उसी टाइम पे स्टार्ट कर लेनी चाहिए। उसी टाइम पे चलो, फुल टाइम वर्क भी कर सकते हैं हम, अगर PR के लिए भी आप जॉब ढूँढते हो उस टाइम पे। तो मुझे लगता है थोड़ा टाइम निकाल के रिसर्च करनी चाहिए कि है क्या, कैसे पॉइंट्स मिलेंगे, कैसे आगे PR में हेल्प होगा। क्योंकि ऐसे काफ़ी लोग हैं, जैसे मेरा ही है, क्योंकि मुझे पता नहीं था बिल्कुल भी कि ऐसा फ्रेंच का भी प्रोग्राम होता है। लेट पता लगा, पर चलो स्टार्ट कर लिया। तो Hmm. मुझे लगता है कि पहले ही देख लेना चाहिए, यूट्यूब पे सर्च कर लो या गूगल पे कि हाँ, भई कैसे फ्रेंच हेल्प करते हैं, और देखना चाहिए क्या अप्रोच है। तो घबराना नहीं चाहिए। अब आई नो लैंग्वेज न्यू है बिल्कुल, जैसे मदर टंग हमारी पंजाबी और हिंदी है, और इंग्लिश वो डिफरेंट होती है। और अगर आप न्यू लैंग्वेज लर्न कर रहे हो, वो तो बहुत ही वो है, क्योंकि हम पंजाबी, हिंदी बचपन से बोलते आ रहे हैं, तो वो तो ऑब्वियसली हमें आती है। पर हाँ, फ्रेंच है, फ्रेंच हम स्टार्टिंग से नहीं बोलते आ रहे हैं, लगेगा टाइम। तो मेरे हिसाब से घबराना नहीं चाहिए, स्टार्टिंग में देखो, सर्च करो कि यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोज़ है, कि हाँ, वी कैन हाउ टू स्टार्ट फ्रेंच जर्नी और एवरीथिंग। और आई थिंक दे शुड कनेक्ट विद यू एज़ वेल, कि हाँ, भी कैसे आगे बढ़ें, और हम ऐसे-ऐसे हमें करना चाहिए। तो आई थिंक सभी को घबराना नहीं चाहिए। कोई ऐसा वो नहीं है कि हाँ, अभी आपको डरा के रखा है या ऐसे। द थिंग इज कि रॉकेट साइंस नहीं है, लाइक ऐसा नहीं है कि हाँ जी। इतना 1 साल पढ़ोगे, इतनी मेहनत की तो भी कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि अगर मेहनत कर रहे हो तो रिजल्ट मिलेगा ही। अब आपने भी देखो 3 महीने मेहनत की तभी आपका A1 A2 3 महीने में हुआ, है ना? अगर हाँ हम जी। मेहनत नहीं करेंगे देन तो डेफिनेटली फिर तो चलो कुछ सिंपल सी लैंग्वेज भी सीखनी हो वो भी नहीं पॉसिबल होगी, और ये तो चलो फिर भी। एंड एक्चुअली फ्रेंच इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट लैंग्वेजेस टू लर्न अगर आपको इंग्लिश आती है, क्योंकि इंग्लिश से बहुत कॉमन है। आपने भी देखा होगा अभी फ्रेंच जब आप सीखते हो कितने सारे वर्ड्स कॉमन है, 30% वर्ड्स तो कॉमन ही है इंग्लिश से, राइट? ओके, नो, साउंड्स गुड। एंड जस्ट जस्ट फाइनल क्वेश्चन, क्योंकि आपने वो मदर टंग की बात की, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अब जैसे हम हिंदी बोलते हैं या पंजाबी बोलते हैं, हमारी मदर टंग कोई और है देन इंग्लिश, तो हमारे दिमाग में होता है कि विल आई रियली बी एबल टू बिल्ड दैट एबिलिटी टू स्पीक फ्रेंच? व्हाट माइंडसेट डू यू हैव रिगार्डिंग दैट? सो आई थिंक
नेगेटिविटी नहीं हमें रखनी चाहिए दिमाग में। सबसे पहले तो यही आ जाता है कि अगर हम सोचते हैं हाँ, कि हम ऐसे कहने लगते हैं हाँ, ये फ्रेंच और ऐसे-ऐसे उससे नेगेटिव ख़्याल आ जाते हैं, उससे बंदा डीमोटिवेट होता है। हाँ, ये नहीं करना चाहिए, लाइक हमें पॉज़िटिव रहना चाहिए और फ्रेंच लाइक न्यू लैंग्वेज है, हमें ये देखना चाहिए, हम नई स्टार्टिंग से पढ़े हैं, या इंडिया से हैं या कोई और कंट्री में कोई और लैंग्वेज होती है, तो और ये फ्रेंच बिल्कुल ही एक नई वो आ जाएगी, तो मुझे लगता है कि नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, आराम से स्टार्ट करना चाहिए। तो आई नो थोड़ा डिफ़िकल्ट है स्टार्टिंग में, हुँ, पर जैसे-जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, लाइक अगर हम ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही आएगा। जैसे पेपर पेपर भी होते थे इंडिया में, तो पढ़ के ही जाते थे, ऐसा तो होता नहीं था, हाँ, अभी बिना पढ़े चले गए या ऐसे घर पे जैसे पेरेंट्स का डर होता था, हाँ, भी अगर आपके नंबर नहीं आएँगे तो ऐसे-ऐसे। तो मुझे लगता है कि हाँ, भी मेहनत करो, तो तभी आपको वो रिज़ल्ट मिलेगा। देखो वीडियोज़ देखो यूट्यूब पे जाके, मोटिवेट रहो, पॉज़िटिव रहो, इस तभी आपको अंदर से आएगा कि हाँ, भी नहीं मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। हाँ। तो प्रोनाउंसिएशन या सिलेबस की बात करो, नो डाउट ज़्यादा है, कि तो वो ऐसे हाँ जी। एंड सी द अदर थिंग इज कि व्हेन वी आर कमिंग, देखो अब कनाडा में हम सोच के ये तो आए नहीं कि वही चीजें करते रहेंगे जो इंडिया में करते थे, हमें भी इंप्रूव होना है, राइट? आवर गोल इज हुँ, टू हुँ। बिल्ड अर करियर इन कनाडा। सो पीआर एग्ज़ैक्टली। एक ही सिर्फ पीआर तो एक लाइक बाय प्रोडक्ट है। एक्चुअल में हम क्या सीख रहे हैं? हम एक लैंग्वेज सीख रहे हैं जो हमें यहाँ पे बेटर जॉब्स देने में हेल्प करेगा, ओवरऑल हमारा स्किल सेट इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। अब 6 months फ्रॉम नाउ, नॉट इवन 6 months, लाइक 3 months फ्रॉम नाउ यू विल हैव अ स्किल जिसमें आप बहुत फ्लुएंट हो, राइट? सो यू सी दैट कि कितना एक बड़ा ड्रास्टिक चेंज है लाइफ में, एंड हाउ मच बेनिफिशियल इट इज। सो नो, दैट्स ग्रेट। थैंक यू दीक्षा, आपने बहुत ही आज वैल्यूएबल इंसाइट शेयर किए, बिकॉज ये एक बिगिनर परस्पेक्टिव में बहुत जरूरी होता है स्टूडेंट्स को, और कोई भी जो हाँ फ्रेंड्स जी, सीख रहे हैं उनको प्रॉपरली समझाने के लिए कि ऐसा ही होगा। लाइक अगर आप बिगिनर हो, हाँ जी। डिमोटिवेशन आएगी, आपको फ्रस्ट्रेटेड भी लगेगा और ऐसा लगेगा कि डेड एंड आ गया, मेरी इंप्रूवमेंट नहीं होगी, बट इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। वो रेगुलर बेसिस पे, एज लॉन्ग एज यू आर पुटिंग द एफर्ट, it should happen. Like we should not think that oh it's not useful or anything, but when हाँ, you will do it you will get to know that there are so many job opportunities and so many other opportunities are open for correct. you when you do French. I think that should be the mindset and approach to learn French, and also for the permanent residency and other things. Perfect. Sounds good. Thank you, Diksha. Thank you so much for No worries. thank you everyone for watching this video.